चले जाते थे, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद ही, क्योंकि वहाँ पर गली मोहल्ले वाले बातें करते थे, अरे प्रेशर सोच कर रही है तो और क्या होगा, तो मेरे को वो सुन के भी लगता था कि नहीं मैं वहीं जाऊँ, चली जाऊँ, फिर मैं वापस वहीं। अर्पिता आनंद हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं शो पे। अर्पिता, you know, this kind of abuse is something which is probably so prevalent, but it still just refuses to go away. You're right, and I think this is one of the biggest evils, because if you look at the concept of home, what is the first thing that comes to our mind? You know, a safe space for people to nurture each other and for families to live together. But there is a harsh reality about domestic violence that is out there, much more than what comes to light, and I'm glad that, you know, we have this opportunity where people are coming and talking about their experiences, and I say that because I think people have to begin raising their voices against it. I think what we also have to understand is that very often people, you know, in these positions will rationalize this violent behavior. They will tend to make comments like, ऐसा तो घरों में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, but none of that is true. ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है पर होना नहीं चाहिए, इसमें बड़ी बात है. Sometimes what happens is that there's an isolated incidence of violence and people say, oh no big deal, it's just a one-off thing, or maybe it's not much and it's, you know, just verbal abuse and it's nothing more. But I think what people have to begin to realize is that abuse in any form is simply unacceptable. Whether it's verbal, emotional, sexual, physical, it is a non-negotiable. The second thing is that things can be done about it. For example, voices can be raised against it. Like Dolly and Kiran have done. They've moved out of that. And I think one of the things that they've got out of that. Yeah, and one of the things that tends to happen is that because a lot of women particularly are not assertive enough, they reinforce that. So the less they revolt against it, the more the violence is meted out to them. So if even the slightest thing happens and they're able to stand up and say, this is not acceptable, actually the chances are that, you know, it will probably break that cycle. But a lot of women wait for very long periods of time before that happens. आप लोगों के साथ कितने टाइम तक ये सब हुआ जिसके पहले आपने हिम्मत जुटाई कि अब ये और नहीं सहन होता? मेरे साथ तो पूरे 12 साल हुआ है। मैं फिर मैंने लगभग 2000 के में आकर मेरे पास थोड़ी हिम्मत आई कि अब मेरे को अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे हस्बैंड ने, जबकि मेरी इसी बेटी के ऊपर मुद्दा उठा के, 3 महीने की मेरी बेटी ही थी अभी, उसको वहाँ से छोड़ के दिल्ली आ गए। मैं लखनऊ में ही मैरिड हुई थी, तो मैं दिल्ली आ गई और बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। पैसे भी नहीं देते थे घर पे, पैसे भी मेरे पेरेंट्स के घर से वो यही बात बोलते थे, क्योंकि पेरेंट्स मेरे अच्छे थे, बैक अच्छा था मेरा, तो कहते कुछ नहीं, तू परेशान मत हो, मैं तुझे दे दूंगा। और कानपुर से लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं होता था, तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र था। आता कोई भी भाई पैसे पकड़ा के चला जाता मेरे को। तो मैंने कहा ये कब तक मेरा लेकिन चलेगा कि वो है। फिर मैंने वहाँ पर पुलिस केस करा उसको लेकर कि वो चले गए छोड़। हाँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। जब मैंने 10 दिन 12 दिन देखा कि मेरे को नहीं हस्बैंड मेरे वापस आ रहे, मेरी बेटी बीमार हो रही है, मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि बेटी का अटैचमेंट हो गया था पापा के साथ, मैंने धीरे धीरे कर दिया था इस तरीके, और वो बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। तो डॉक्टर ने यही बोला कि शायद इसको कुछ ऐसा हुआ है, इसी वजह से ऐसा। तो मैंने बोला, उनके हाथ जोड़े, पर उन्होंने एक ही बात बोली, मुझे नहीं पता। अब कब आपने कहा कि बस अब मैं बाहर निकल रही हूँ, किस तरह से आप ये कर पाएंगे? मैं वहाँ से दिल्ली आई, फिर इसी केस को सिलसिले में मैं घर से भागी, सिर्फ 2 चप्पल से बाथरूम की चप्पल पहनी, और यहाँ पे मैंने ये उस समय पंजाब ना आके दिल्ली में मेरी सिस्टर इल्ला के पास घर पे रह रहे थे, और वहाँ पेपर में निकलवा दिया, हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ चला गया है। तो उसी को बस वो उसी कटिंग को लेकर मैं दिल्ली आए। दिल्ली में आकर मैंने इन-लॉज के घर गई, और वहाँ ये बैठे हुए, तो वो भी नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे नहीं जाने दूंगा मैं, यहीं रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं जाने देते हो जीआई, ये मेरे पास कटिंग है, मैं नीचे ही बूथ बना हुआ था पुलिस का, मैंने कहा मैं नीचे जाती हूँ, आपने यहाँ इनको छुपा रखा वो पेपर में निकलवा दिया कि मेरे को नहीं पता। फिर उन्होंने कहा चल ले जाए इसको। फिर मेरी मौसी वगैरह ने कहा कि तुम दिल्ली सेटल हो, हम तुम्हें दिल्ली